In the third unit, we started discussing that, well, development education is very important. There's a need to have development education. We define what a development is, but then we have not so far given any precise measure of development, whether which country is at which level of development, and if there are two or more than two countries, if we want to compare their development level, then what should be the unit of measurement? That we call that what are the indicators of development, so that the comparison between countries is facilitated. This is what we are talking last time when we left. And let me remind you, we said that development is a phenomenon. And this phenomena is very complex phenomenon. It's not a simple phenomena. And this phenomena covers different dimensions. Development is not one-dimensional phenomenon. It has different dimensions, and those different dimensions we can see development from social point of view. We can see development from economic point of view. We can see the development from the political point of view. We can see the development from cultural, historical, and geographical point of view. And I explained all these aspects of development, all these dimensions of their development at length. Now, phenomena I have explained. It's just like that. Well, this is summer, this is winter, this is autumn, this is spring. But if we compare summers of Pakistan with summers of some country of Africa or summers of some country of Europe, what should be the indicator? What should be the level? What should the be unit? So we'll always refer to temperature. That at noon, the temperature rises to this level within the first week of April in Pakistan. Average temperature is this at this hour, and average temperature is this at this hour in another country. So that serves as a comparison. Similarly, are there any indicators of different aspects of development? Yes, various attempts have continuously made to understand the phenomena in more scientific and analytical framework. People have been discussing various dimensions of development and coming up with the indicators of those various aspects of development. So what are these indicators all about? The Organization for Economic Cooperation and Development, the short is OECD, defines an indicator as a parameter or a value derived from the parameters which provides information about and describes the state of a phenomenon. I just mentioned that development is a multi-dimensional phenomena. So different aspects of this phenomena we measure with different indicators.
And these indicators describe the state of a phenomena, environment, or area with a significance extended beyond the directly associated with parameter value. I'll further explain it with examples. There are hundreds. No, there's no, not one indicator. Say I just gave you the example of weather. I said the indicator is temperature. So one indicator is temperature. But as far as the concept of development, as far as the phenomena of development is concerned, there is not one indicator like temperature. There are multiple indicators. There are, I would say, hundreds of indicators representing the economic aspect of development, the political aspect of development, the social aspect of development, and other dimensions of development. So they range from hard economic indicators like gross national income. And there are, by the way, various concepts of even that: GDP, GNP, national income. There are various shades, and each is slightly different from another. So these indicators range from hard indicators like GNP to various poverty and economic inequality. There are other indicators showing the poverty line, गुर्बत की लकीर जिसको हम कहते हैं, गुर्बत की लकीर से इतने नीचे हैं। ये आपने आजकल मीडिया में देखा होगा, इतने मुल्क गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। पाकिस्तान में इतने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। जो वो क्या है? दैट वो जो गुर्बत की लकीर है, पॉवर्टी लाइन, वो है इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। सो इसी तरीके से इनइक्वालिटी, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, उसके भी इंडिकेटर जो है वो अवेलेबल हैं। सो इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG जिसको कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी एक इंडिकेटर है। और ये तमाम फोकस मोर ऑन सोशल इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ, और मुख्तलिफ सेक्टर्स ऑफ सोसाइटीज हैं, जैसे इकोनॉमिक सेक्टर है। इसके अंदर आप देखें तो आपको हेल्थ सेक्टर नजर आएगा, हेल्थ के डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं। फिर आपको एजुकेशन सेक्टर नजर आएगा, एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट के और इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। All the way down to much more subjective development indicators such as happiness. Even अब तो indicators आ गए हैं कि किस रीजन के या किस मुल्क के लोग ज्यादा खुश हैं, खुशी के इंडिकेटर्स। सो मैं जैसे पहली लाइन इस स्लाइड की आपको बता रही है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स, लेकिन जो बड़े बड़े हैं वो हम यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे एक चंक अगर हम ले लें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, फिर एजुकेशनल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, फिर हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, फिर सोशल, जिसमें जेंडर के हवाले से जेंडर में कोई डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर की जो है वो रेशोज हैं, प्रोपोर्शंस हैं, वो इंडिकेटर वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये कंपोजिट डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वो जो हैं, वो इंडिकेटर जो है जो एक से ज्यादा एस्पेक्ट को
रिफ्लेक्ट करते हैं, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI है। तो अभी इस तमहीदी बात के बाद मैं आ रहा हूं डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है। ये टर्म बहुत इस्तेमाल होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, और एक और मिलती जुलती है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और एक और मिलती जुलती कंफ्यूज टर्म आप करेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, फिर एक और आप टर्म आपको इस सिलसिले में मिलेगी पर कैपिटा इनकम। ये इंडिकेटर्स हैं जो इकोनॉमिक हेल्थ के किसी इकोनॉमी के। पहले आप देखते हैं GDP क्या होता है। GDP is how much money a country makes from the products over the course of year, usually converted usually converted to US dollars. मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, ignoring the international sector. दुनिया में कंपैरिजन एक रखने के लिए हम ये वैसे तो अब जब हम पाकिस्तान की GDP या GNP मापेंगे तो वो अपनी लोकल करेंसी में मापेंगे, लेकिन फिर इसको इंटरनेशनली कंपेयर करने के लिए हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे डॉलर टर्म में। ठीक है, द सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल रेजिडेंस प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस minus any subsidies not included in the value of the products. ये है technical definition of GDP. फिर है gross national product, ये क्या है? GNP is the GDP of a nation together with any money that has been earned by the investment abroad माइनस इनकम अर्न्ड बाय नॉन नेशनल। अब GNP की जब हम बात करेंगे तो फिर ये सिर्फ लोकल लेवल की बात नहीं होगी, इसमें हम इंटरनेशनल जो फैक्टर है उसको भी काउंट करेंगे, उसको भी केटर फॉर करेंगे। और वो इंटरनेशनल फैक्टर क्या है? आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज भेजते हैं दूसरे ममालिक में, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे ममालिक से आप लेते हैं। ये माइनस प्लस करके आप अपनी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को डिटरमिन करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि GDP और GNP सेम हो। आप डिपेंड करता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कितना बैलेंस्ड है, तो या डेफिसिट है या सरप्लस है, उस हिसाब से जो आपका जो होगा वो ये GDP और GNP का फर्क वाज़ह होगा। अब एजुकेशन इंडिकेटर्स क्या है? द वर्ल्ड बैंक यूजेस द फॉलोइंग 8 core indicators to measure how developed a country is in terms of education. क्या? देन अब मैं जो इकोनॉमिक इंडिकेटर से मैंने एक जो दरमियान में रह गया था इकोनॉमिक इंडिकेटर जो मैंने जिक्र भी किया था, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जैसे कि लफ्ज से ज़ाहिर है आपकी टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सो आपकी ये एवरेज का एक कॉन्सेप्ट है कि आपके एक बंदा जो है वो उसकी कितनी इनकम है, इसको पर कैपिटा इनकम हम कहेंगे, एवरेज पर कैपिटा इनकम। सो टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब हम मूव करते हैं जो एजुकेशन सेक्टर है उसके इंडिकेटर्स का, कि एक मुल्क और दूसरे मुल्क का अगर हम डेवलपमेंट कंपैरिजन करना चाहते हैं एजुकेशन में, खास तौर पे
कि एजुकेशन के हवाले से उनकी क्या कंडीशन है, तो हम उसको कहते हैं एजुकेशन इंडिकेटर्स। सो एजुकेशन इंडिकेटर्स जो हैं वो इसमें हम देखेंगे द वर्ल्ड बैंक यूजेस द फॉलोइंग 8 कोर indicators to measure how developed a country is in term of education। हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है वो 8 जो है इंडिकेटर्स का नाम लेता है, और उसमें पहला है द नेट एनरोलमेंट रेट फॉर प्री प्राइमरी, the net enrollment rate for primary, the net enrollment rate for secondary, the gross enrollment ratio for tertiary education, और ये जेंडर पैरिटी फॉर प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि बच्चे और बच्चियों के हवाले से हम देखते हैं कि कितने वो एनरोल हो रहे हैं, किस रेशियो के साथ हो रहे हैं। प्राइमरी कंप्लीशन रेट फॉर बोथ सेक्सेस, और फिर जो है टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी एज चिल्ड्रन हु आर आउट ऑफ स्कूल, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी का कितना हिस्सा कोई मुल्क खर्च कर रहा है एजुकेशन के ऊपर, ये भी एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। फिर अब हम पॉपुलेशन इंडिकेटर, ये एक बहुत जो अहम सेक्टर है, जिसके हमारे पास 3 कम से कम बड़े इंडिकेटर हैं, आप 4 भी कह सकते हो। यानी कि फौतगी का रेट क्या है, किस तादाद से लोग जो है 1000 पे हम आमतौर पे काउंट करते हैं कि इसका फौतगी का रेट है, और ख़ास तौर पे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को अलग देखते हैं। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम अलग देखते हैं, कितनी माएँ जो है वो फौत हो रही हैं, कितने इन्फेंट यानी बच्चे जो 1 साल से कम उम्र के फौत हो रहे हैं। फिर जो वो तो एलिमिनेशन राउंड है ना इंसानों का, जो एडिशन का राउंड है वो है ग्रोथ। पॉपुलेशन किस हिसाब से हो रही है, किस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, और उसके बाद हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी के उम्र जो है उसके हवाले से जो है वो एवरेज एज क्या है। ना हम देखते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज के जैसे जैसे एक्सक्यूज मी, हेल्थ फैसिलिटीज जैसे जैसे जो बढ़ती चली जा रही हैं, इस तरीके से ह्यूमन की एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जरा इसको एक्सप्लेन कर दें। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 year ऑफ एज। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। 1 साल के अंदर 1000 बच्चों में से जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो कितने फौत हो जाते हैं। फिर इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट का भी हम कंपैरिजन करते हैं कि क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स, ये कितने हजार में के साथ कितने जो है ना वो बच्चे पैदा हो रहे हैं, और हजार के साथ कितने लोग मर रहे हैं। सो जो नेट होगा वो होगा बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जो होगा वो नेट ग्रोथ रेट होगा। Can be used as overall measure of the state of healthcare and education in a country, though these numbers do not give a full picture of a nation's situation। फिर हम एक और मेजर की बात करते हैं, और वो मेजर है द यूनाइटेड नेशन डिफाइंस द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या हुआ जी, ये जरा देखने वाली बात है। ये है एक कंपोजिट मेजर, ये एक एस्पेक्ट को नहीं देखता, एक से ज्यादा एस्पेक्ट को मेजर करता है। सो इसको हम इसलिए कंपोजिट मेजर कह रहे हैं। ए कंपोजिट मेजर रिफ्लेक्टिंग इनइक्वालिटी इन अचीवमेंट बिटवीन वुमेन एंड मेन इन 3 dimensions। क्या क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। ये 3 डायमेंशन इसमें हम देखते हैं। एक जो अब हम जेंडर की इनइक्वालिटी इंडेक्स को देखते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ
यानी बच्चे पैदा करने वाली उसकी क्या उसकी सेहत है, कितने बच्चे पैदा करने की पोजीशन में है, फिर एम्पावरमेंट और फिर जो है उसकी लेबर मार्केट में उसकी जो है क्या वैल्यू है। ज़्यादा इसको ज़रा क्लियर कर दें तो ये इट गिव्स कंट्रीज़ ए स्कोर बिटवीन 0 टू 1। जिस तरह एचआईडी को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम मापते हैं, इसी तरीके से ये भी जो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये भी 0 और 1 के दरमियान होता है। और द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी, ये हम उसका पहले जिक्र कर चुके हैं हम। फिर द एडोलेसेंट बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ टू वुमेन एजेस 15 साल से 19 साल, एक हजार के ऊपर क्या रेशो है। और फिर आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ सीड्स हेल्ड बाय वुमेन, ये इनइक्वालिटी चूंकि इंडेक्स की बात हो रही है, तो हम ये कंपेयर करते हैं कि वो किस तनासब के साथ proportion of seats held by women in the national parliament, जो पार्लियामेंट में ख़वातीन के लिए कितनी सीटें जो है ना ख़वातीन के जो है ना वो उस पे वो बैठी हुई हैं। और फिर द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल पॉपुलेशन कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन विद एट लीस्ट सम सेकेंडरी एजुकेशन। इसी तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन को अगर हम देखें तो कितने जो है वो मेल हैं इसमें प्रोपोर्शन, और कितने फीमेल है। अगर टोटल हम देखें कि इतने लोग सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिफाइड हैं, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। द कंपैरेटिव लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अब अगर मुल्क की लेबर फोर्स की एक ख़ास तादाद है, तो उस तादाद में कितने परसेंट जो है मेल हैं और कितने परसेंट फीमेल हैं। अब जो है वो आधा घंटा गुजर चुका है और सना भी आ गई है। सना, यू आर ऑल्सो वेलकम। आगे हम चलते हैं जी। हम जो है वो यूनिट 3 का जो बाकी मादा हिस्सा है वो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। सो द डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर क्या है? द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंपाइल्ड एनुअली बाय यूनाइटेड नेशंस एंड गिव्स कंट्रीज ए स्कोर बेस्ड ऑन GNI। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे निकालते हैं? GNI पर कैपिटा, नंबर ऑफ years एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड school schooling and life expectancy are in the words of UNO itself। HID क्या होता है जी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये HID, इट इज ए कंपोजिट इंडेक्स measuring average achievement in three basic dimensions of human development। ये तीन जो एस्पेक्ट हैं, ये कंपोजिट इंडेक्स है, ये तीन एस्पेक्ट हम देखते हैं। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हम जो है ना मापने की पोजीशन में होते हैं कि उम्र कितनी है, और उसमें जो उम्र है वो उसमें हेल्थ की क्या कंडीशन है। फिर नॉलेज के हिसाब से उनकी नॉलेज क्या है, लेवल क्या है, और फिर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ये तीन मुख्तलिफ एस्पेक्ट, इसको हम एक इंडेक्स में जब स्मॉल लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। or human development index emphasizes that people and their capabilities should be the ultimate criteria। Human development index emphasizes that people and their capabilities should be the ultimate criteria for assessing the development of a country, not economic growth alone। ठीक है। So HID measures achievement of a country in three basic dimensions। ये पिछली स्लाइड में भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ जरा ज्यादा क्लियरली बताया जा रहा है कि ये चूंकि कंपोजिट मेजर है, तो ये किन तीन चीजों को हम मेजर करके फिर इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाते हैं। एक है
उम्र कितनी है और कितनी लंबी उम्र है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और उस दौरान में उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी रही है। फिर एक्सेस टू नॉलेज, वो उसका नॉलेज कहाँ तक वो गेन कर रहा है या कर पाया है, और फिर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग